let's move to the question number 1 of today's class, right? Based on the topic of electrochemistry, right? So I hope all of you are ready for this question number 1. So what will be the correct answer? Tell me for this particular question. I am providing some time so that you can solve this particular question. This is the question number 1. I am reading the question. I will provide some hint. So listen me very carefully. The question is saying that for a reaction, the reaction is saying that for a cell involving one electron, E naught cell is equal to, खुद से कह दिया उसने, involving one electron, N is equal to 1. E naught cell is equal to 0.59 volt. Okay. At 298 Kelvin, that means वो कह रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर. ध्यान रखना, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए चलना है. The equilibrium constant for the cell reaction is given that 2.303 RT by F you have to take as 0.059 volt at T is equal to 298 Kelvin. Okay. What is the common formula? E cell is equal to E naught cell minus at standard temperature 0.0591 by N log concentration of product on the stoichiometric coefficient divided by concentration of reactants. If reaction is taking place at equilibrium, let's write this Kc, right? So E cell is equal to 0. So E naught cell is equal to 0.0591. The question is saying that number of electron transfer is 1 log Kc. Or you can write simple K. So log K is equal to E naught cell divided by 0.0591. E naught cell value is given to you, that is 0.59 volt divided by 0.0591. That means 1, 2, 3, 4 and below if you will remove this decimal, so denominator में क्या आएगा 1, 2, 3. So that means you are getting log K is equal to 10. It means K is equal to 10 to the power 10. So what will be the correct answer? The correct answer of this question is 10 raised to the power 10. Is it clear, everyone? This is very simple, very easy question. You can solve this question. E naught cell answers 1. That means for particular question 1, the correct answer is option C. E naught cell at equilibrium will be 2.303 RT by NF log K. And we know that given values are E naught cell is equal to 0.59 volt. Number of electrons transferred during this redox reaction is 1. So E naught cell is equal to 0.59. We will put these values, and the value of this 2.303 RT by F is 0.059. Value of N is 1 log K. When you will solve this, you will get K is equal to 10 raised to the power 10, or you can write this K is equal to 1.0 into 10 raised to the power 10. Is it clear? Are you ready for the question number 2? Yes. What is the question number 2? For the cell reaction, 2Fe3 positive plus 2I negative gives 2Fe2 positive plus I2. The question is saying that this is 3 positive to 2 positive. It means यहाँ पे क्या हो रहा है? Reduction. What is happening here? Reduction 3 से 2 और -1 से 0. It means यहाँ पे क्या हो रहा है? Increase in oxidation number, मतलब oxidation. एक बात तो पता लगी, फॉर द सेल रिएक्शन आपको क्या दे रखा है? आपको E naught cell दे दिया 0.24 volt. This is E naught cell. The standard gives free energy change of the cell reaction is given that Faraday's constant F आपको जो यूज करना है वो करना है 96500 कूलाम पर मोल. कूलाम पर मोल. आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी कि उसने पूछा है डेल्टा जी नॉट बता दो. डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है माइनस NRT ln K या होता है माइनस NF E नॉट सेल. उसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप खुद से निकालो. इक्वेशन बैलेंस्ड है. 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जा रहे हैं और -1 से 0 आ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन और 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, बट 2 ट्रांसफर हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो गए 2. ठीक है जी. उसके बाद कह रहा है आर की वैल्यू आपको पता ही है, आर की वैल्यू की जरूरत नहीं है. उसके बाद कह रहा है एफ जो कि है 96500 और E नॉट सेल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करिए क्या आना चाहिए. कह रहा डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट माइनस 2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन. मैंने आपको दिखा दिया कैसे. 96500 इज वैल्यू ऑफ फेराडे. E नॉट इज दिस. मल्टीप्लाई करिए आंसर सीधा आ जाएगा 46320 जूल पर मोल, मतलब -46.32 किलो जूल पर मोल. कैसे आया?
इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर इन किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आर यू रेडी एवरीवन? You can solve this question in your notebook. In the meantime, I am providing you some important hints regarding this question. The question is saying that consider the half cell reduction reaction. Reduction, the question itself saying that this is reduction reaction, and we know that gain of electron means reduction. Gain of electron means reduction. Mn2 positive is gaining 2 electrons, so definitely आपको Mn मिलेगा। और इसका जो EMF दे रखा है, स्टैंडर्ड EMF वो दे रखा है -1.18 वोल्ट। Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन प्लस इलेक्ट्रॉन। इसका आपको दे रखा है E0 -1.51 वोल्ट। कह रहा है E0 बता दो। 3Mn2 पॉजिटिव गिव्स Mn0 प्लस 2Mn3 पॉजिटिव एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली यस या नो। पॉसिबिलिटी तो यस या नो में और E0 इसका बताना है। तो बहुत सीधी सी बात है। देखो EMF एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि नॉन एडिटिव होती है नेचर में, क्योंकि ये क्वालिटी पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो ये नॉन एडिटिव हो जाती है। इसलिए हमें डेल्टा जी की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करने के लिए हम डेल्टा जी की हेल्प लेंगे। डेल्टा E0 क्या होगा? E0 रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो E0 रिडक्शन प्लस E0 ऑक्सीडेशन, ये तो होगा। मैंने ये तो फॉर्मूला बताया था। या तो आप कर लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, या फिर आप कर लीजिए E0 रिडक्शन प्लस E0 ऑक्सीडेशन। क्योंकि आपको रिडक्शन का भी दे रखा है और आपको ऑक्सीडेशन का भी दे रखा है, तो दोनों वैल्यूज को आप क्या कर देंगे? सम कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा -2.69 वोल्ट। जब आपका आंसर -2.69 वोल्ट आ जाता है, क्योंकि डेल्टा E0 क्या आया है? नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं E0 सेल क्या आया है? नेगेटिव। अगर E0 सेल नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, डेल्टा जी होता है आपको -NF E0। अगर आपका E0 क्या आया है? नेगेटिव, तो डेल्टा G0 क्या हो गया? पॉजिटिव। सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिएक्शन इज व्हाट? बिकॉज द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है और E0 सेल नेगेटिव आ रहा है। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये मैंने आपको बताया ही है। तो Mn2 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू अगर इतनी है तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी वैल्यू उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता कि आप 1 ml ले रहे हो, 2 ml ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, नहीं। उसकी जो वैल्यू रहेगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो फिक्स रहेगी। वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो जाता है। क्या आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, -2.69 वोल्ट एंड रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस फॉरवर्ड। ओके, next is question number 4. Are you ready everyone for this question number 4? Question number 4 is a very easy and simple question. The question is saying that standard electrode potential मतलब SRP, आप कैसे रिडक्शन नहीं बोला उसने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है, ऑफ 3 मेटल्स। आपको E0 सेल दे दिया, E0 सेल फॉर -1.2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट एंड 3.0 वोल्ट। ठीक है, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी। मैंने आपसे क्या कहा था कि जितना ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा आपका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, उतना इजीली रिडक्शन होगा, उतना मुश्किल से ऑक्सीडेशन होगा। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? अपने आप को क्या करे? ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करे? रिड्यूस। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। क्लियर? तो लेट्स मूव टू द आंसर। आंसर क्या कह रहा है? आंसर एक सिंपल सी बात कहेगा, ऑप्शन ए का, ऑप्शन सी मैच कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। एज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -3.0, मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती है उस तरीके से आपका जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो इंक्रीज कर रही है। अगर वो इंक्रीज करेगी, एज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, तो Z की वैल्यू सबसे ज्यादा जो कि नेगेटिव में, उसके बाद X और उसके बाद Y का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन तीनों में सबसे ज्यादा है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर हो गई सबसे कम। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम।
और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, खुद का रिडक्शन करना। अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो वो अपना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा बहुत तेजी से, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्ट बात। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर होगा, जिसका आंसर मैच कर रहा है सी, मतलब जेड देन एक्स देन वाई। क्योंकि आप देख सकते हैं जेड की वैल्यू -3 है, देन आपकी एक्स की वैल्यू -1.2 और वाई की वैल्यू 0.5 वोल्ट है। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना इजीली रिडक्शन होगा और मुश्किल से आपका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। दैट इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu पॉजिटिव। ठीक है, 2 पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cu पॉजिटिव में चेंज हो चुका है, इट मींस रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। Cu पॉजिटिव ने फिर से एक इलेक्ट्रॉन लिया और Cu में चेंज हो गया, अगेन रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। The values are given to you. What are the values? The values are 0.15 volt and 0.50 volt. तो इसके लिए आपको वैल्यूज दे रखी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और इसके लिए भी दे रखी है। द वैल्यू ऑफ ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu। अब Cu2 पॉजिटिव से डायरेक्ट Cu की वैल्यू बतानी है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बट ई नॉट को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए मूव करते हैं। Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cu पॉजिटिव में चेंज हुआ, तो E1 नॉट आपको दे रखा है 0.15 वोल्ट। डेल्टा G1 नॉट निकालना, क्योंकि E1 को डायरेक्टली E2 को में ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये इंटेंसिव है, जबकि डेल्टा G आपके एडिटिव होती है। तो डेल्टा G हमें कैलकुलेट करना होता है, हमें रिलेशनशिप पता होती है डेल्टा G नॉट और किसके बीच में, E1 नॉट मतलब E नॉट के बीच में। डेल्टा G हम और ई नॉट के बीच में हमें क्या पता है, रिलेशनशिप पता है। तो डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -N1 E1 नॉट F। क्या हो गया, -N1 E1 नॉट F, क्योंकि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट। यहाँ पर E नॉट इज नथिंग, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, F is the Faraday's constant, N is the number of electrons transferred during a redox reaction, and delta G naught is the standard gives free energy change। Cu पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, Cu में चेंज हुआ, इसका हमने E2 नॉट दे रखा है इतना, डेल्टा G2 नॉट कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया -N2 E2 नॉट F। Cu2 पॉजिटिव से Cu का डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। डेल्टा G नॉट अगर हमें 3 वाले का निकालना है मान लीजिए, तो डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन तभी आएगी, आप देख सकते हैं। Cu2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 पॉजिटिव इधर आ गया और ये बच गया Cu। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, E1 नॉट प्लस E2 नॉट, मतलब डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। जब हमने उसको सम किया तो आपका जो आंसर आएगा -N E नॉट F, ये आएगा इसका -1 इंटू N1 इंटू E1 नॉट F प्लस -1 इंटू N2 E2 नॉट और F। ये जो -1 और -1 किए गए हैं ये किसके लिए है आपको बताइए, NF E नॉट के लिए। अब आप आगे देखिए, E नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइड बाय N। तो अगर हमें E नॉट कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला इस तरीके से आप डायरेक्टली डेल्टा G की हेल्प से बनाया गया है। किसकी हेल्प से बनाया गया, डेल्टा G की हेल्प से, ये ध्यान रखना है। ओके, तो क्योंकि माइनस माइनस पूरा कैंसिल हो चुका है, यहाँ से ये जो वैल्यू पुट करी गई है N2 की है और ये किसकी वैल्यू है, N1 की वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट 1। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे E1 नॉट कितना हो गया 0.15 और फेराडे कितना लेना है 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। E2 नॉट कितना हो गया 0.50 और ये कितना हो गया 1, और 1 + 1 कितना होगा 2, आंसर कितना होगा 0.325 वोल्ट। E नॉट व्हेन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज डिफरेंट फॉर ऑल, अगर N डिफरेंट हो, यहाँ N1 है, यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, 3 रिएक्शन, वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपने को मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिफरेंट हो तब हम उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलेज को यूज करके आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6 सेइंग? द क्वेश्चन नंबर 6 states that if the E naught cell for a given reaction has a negative value, E naught cell की अगर नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्योंकि डेल्टा G नॉट आ जाएगा पॉजिटिव। देन विच ऑफ द फॉलोइंग
gives the correct relationship for the value of delta G naught and KEQ, क्योंकि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया? पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट क्या हो गया? पॉजिटिव। अब KEQ के साथ रिलेशन बतानी है, क्योंकि अगर आपका ई नॉट सेल क्या है? नेगेटिव, तो डेल्टा जी नॉट आ गया पॉजिटिव, तो दो ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग, या फिर एल एन बोल लीजिए, एल एन के ई क्यू। मतलब ये हुआ कि अगर आपको डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव लाना है, डेल्टा जी नॉट क्या लाना है? पॉजिटिव, तो के ई क्यू को नेगेटिव होना जरूरी है। के ई क्यू नेगेटिव सिर्फ इसमें है, मतलब 1 से कम होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज गिवन एज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। मतलब ई नॉट सेल अगर आपका नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट हो गया पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। फर्दर डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के ई क्यू। इट मीन्स अगर आपको डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो के ई क्यू को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 1। मतलब डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0 व्हेन के ई क्यू इज लेस देन 1। के ई क्यू अगर 1 है तो डेल्टा जी नॉट बिकम्स 0। डेल्टा जी नॉट बिकम्स 0। अगर के ई क्यू 1 से ज्यादा है तो डेल्टा जी नॉट बिकम्स नेगेटिव। क्लियर? सो ये बातें आपको क्या रखनी है? दिमाग में हमेशा रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें, स्मॉल कॉन्सेप्ट्स लगा के आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 फॉर नीट पीवाईक्यूज। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? नीट के पीवाईक्यूज, जिनमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड, अप्रोच किस तरीके से लगानी है और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर रहे हैं, और उनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, I नेगेटिव आयंस मेरे पास हैं किसी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है आयोडीन के साथ 35 डिग्री सेल्सियस पर। स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। ई नॉट आपको दे दिया Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का 0.77 वोल्ट, और ई नॉट दूसरा दे दिया I2 से 2I नेगेटिव का 0.536 वोल्ट। ठीक है, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। कह रहा है फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन इज, रिडॉक्स रिएक्शन करानी है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कैसे पता लगे? देखो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, और क्योंकि इसका पॉजिटिव ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको यहां से क्या दिख रहा है? Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव प्लस 0.77 वोल्ट, I2 से 2I नेगेटिव 0.536 वोल्ट, क्योंकि ई नॉट Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव का ज्यादा है I नेगेटिव से। सो Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस होगा, क्या हो जाएगा? रिड्यूस। मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर रिडक्शन करने की पावर ज्यादा है, मतलब ये जल्दी से रिड्यूस होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। स्टैंडर्ड ही दे रखा है ना, ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड दे रखा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये जल्दी से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये जल्दी से रिड्यूस होगा, अगर ये जल्दी से क्या होगा? रिड्यूस, तो आई क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। मतलब Fe3 पॉजिटिव कहाँ जाएगा? रिडक्शन में, और I नेगेटिव कहाँ जाएगा? ऑक्सीडेशन में। I नेगेटिव ऑक्सीडेशन होकर किस में कन्वर्ट होगा? I2 में। और Fe3 पॉजिटिव रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट होगा? Fe2 पॉजिटिव में। तो आंसर कौन सा मैच करना चाहिए? आंसर मैच करना चाहिए आपका डेफिनेटली ऑप्शन सी। I नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। I2 रिड्यूस होगा I नेगेटिव में, गलत। देयर विल बी नो रिडॉक्स, गलत। I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा I2 में, बिल्कुल ठीक है, -1 से 0। और Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होगा, गलत। Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस होगा किसमें? Fe2 पॉजिटिव में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस होगा Fe2 पॉजिटिव में, और I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा I2 में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए कितना सिंपल और अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 8, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है फिर से ई नॉट का। देखो ई नॉट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ई नॉट वैल्यूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना अच्छे से क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उतना अच्छे से रिडक्शन होगा। और जितना अच्छे से रिडक्शन होगा इसका मतलब वो उतना क्या होगा? जितना अच्छे से रिडक्शन होगा। तो जो अपना रिडक्शन करते हैं वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, राइट। जैसा कि मैं आपने बताया था कि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी कम रिड्यूसिंग पावर होगी, इसका मतलब उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
अब आपको क्या दे रखा है, FeCN6 4 नेगेटिव से FeCN6 3 नेगेटिव, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से +3 गया है। ई नॉट दे रखा है -0.35 वोल्ट, +2 से +3 जाने का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। +2 से +3 जाने का मतलब क्या हुआ, बताइए, +2 से +3 ऑक्सीडेशन, डेफिनेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो दे रखा है एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, और एक दे रखा है सिंपल एक आयन। तो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ई नॉट वैल्यू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा आपकी रिड्यूसिंग पावर, या आप कह सकते हैं उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतनी कम रिड्यूसिंग पावर, सॉरी फॉर दैट, जितना 1/y कर देते हैं, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अपना उतना जल्दी रिडक्शन करेगा। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है दूसरे का रिडक्शन, अपना ऑक्सीडेशन करना। तो अपना ऑक्सीडेशन करना ज्यादा से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, मैं रिपीट करता हूं बात को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो उसका रिडक्शन जल्दी जल्दी होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, अपना ऑक्सीडेशन करता है। मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम होगी। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो अपना ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी से नहीं करेगा, वो अपना रिडक्शन बहुत जल्दी से करेगा, और ऑक्सीडेशन दूसरे का जल्दी से करेगा। क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, अपना रिडक्शन करता है। तो मतलब जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आप ये दो ट्रिक्स को लिख सकते हैं। यू कैन राइट दीज 2 पॉइंट्स। तो डेफिनेटली यू कैन सी दिस इज -0.77 वोल्ट एंड दिस इज -0.35 वोल्ट। ये दिया हुआ है +2 से +3, मतलब ये दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये भी क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इस बात को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में करते हैं। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब वो उतना अपना ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन अपना कौन करता है, जिसका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा और रिडक्शन मुश्किल से करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद का रिडक्शन करते हैं। दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। क्लियर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। तो इन 2-4 पॉइंट्स के बेस पर आप कह सकते हैं कि कौन अच्छा होगा, ऑप्शन सी। मतलब फ्रॉम द गिवन डाटा वी फाइंड Fe3 पॉजिटिव, मतलब ई नॉट Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। एक्चुअली में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में अगर बात करें तो वो हो गया 0.77 वोल्ट। इसका आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम, और वो अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, more is a tendency to get reduced, मतलब better oxidizing agent. I hope this answer is clear to all of you. So question number 8, option number C is the correct answer. Can I move to the next question, everyone? Are you ready for the next question? You can solve the next question, which is again very easy and very simple. That is question number 9. Question is saying that the equilibrium constant for this particular reaction is, बताइए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। जिसके लिए आपको E नॉट गिवन है 0.46 वोल्ट, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। 298 केल्विन इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं नस्ट की। एक रिएक्शन आपको गिवन है Cu + 2Ag पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव + 2Ag। आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि Cu कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 0 से +2, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है +1 से 0। अगर आप ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ई सेल क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो वो हो जाता है 0, है ना। कई बार ई सेल ही पूछ लेता है और हम वो उसको कैलकुलेट करने लग जाते हैं, जबकि अगर वो इक्विलिब्रियम पे तो ई सेल तो हो गया 0। तो सीधा सीधा आपको लगाना है अब ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला हो जाता है क्या, 0.0591, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस दी हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन लॉग। अब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो पहले आएगा Cu2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने क्या पूछा हुआ है, जरूरत ही नहीं क्योंकि उसने पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सीधा लिख देते हैं के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट सेल जो उसने दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे विद एन। एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सीधा पता लग गया, 0 से 2 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, Ag पॉजिटिव 1 Ag पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। सो ड्यूरिंग दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर
है आपके 2, ठीक है। n की वैल्यू क्या है इसके लिए 2, क्लियरली विजिबल है। आप एनोड कैथोड अलग अलग लिख सकते हैं, मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। आप एट एनोड एट कैथोड अलग अलग लिखेंगे, देन यू कैन सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर redox reaction just by looking at the reaction, right? So you have to separate the reactions into two halves and then you can check the what? Then you can check the number of electron transfer during that particular redox reaction. So a K equilibrium is very easy for this particular reaction, that is E naught cell multiply with N, you can divide with 0.0591 and you will get the answer. So क्या आंसर होना चाहिए? The answer will be what? इन ऑप्शन से मैच करना है। You can put all the values, क्योंकि हमें पता है E naught cell is equal to 0.0591 by N log Kc, और Kc मैंने लिख दिया है, वो कंसंट्रेशन की टर्म होगी, आप EQ भी लिख सकते हैं, राइट? Then 0.46 is the given value, 0.0591, a number of electron transfer during this redox reaction 2 log Kc. Log Kc क्या हो जाएगा 2 into 0.46 divided by 0.0591, वैल्यू आएगी 15.57। अब 15.57 का देखना है एंटी लॉग, Kc हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 15.57। आपको बताइए लॉग हम देखते हैं पॉइंट के बाद का, और जो पॉइंट के आगे की वैल्यू होती है वो 10 की पावर में चले जाते हैं। जब आप पॉइंट के बाद का लॉग देखेंगे तो वो आएगी 3.7 वैल्यू, तो जिसको हम नियर अबाउट लिख सकते हैं 4, तो 4 इंटू 10⁻15 आपका आंसर मैच कर रहा है, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सिर्फ इस कैलकुलेशन भी नहीं करते, सिर्फ इस चीज को देख लेते हैं, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी। कैन आई मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10? यस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? E नॉट Fe2 पॉजिटिव टू Fe इज इक्वल टू -0.441 वोल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। E नॉट Fe0 टू 2 पॉजिटिव, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है 0.771 वोल्ट। स्टैंडर्ड EMF ऑफ दिस रिएक्शन Fe पॉजिटिव टू Fe2 Fe3 पॉजिटिव, Fe पॉजिटिव प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव से 3 Fe2 पॉजिटिव, वही डेल्टा जी नॉट का यूज करना है, क्योंकि पहला दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, वैल्यू दी हुई है। फिर दूसरा दिया हुआ है Fe0 से, मतलब Fe गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि Fe पॉजिटिव, नॉट Fe पॉजिटिव, सिर्फ Fe प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव, Fe प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव गिव्स 3 Fe2 पॉजिटिव। तो E नॉट आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करना है। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, Fe गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एट एनोड हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe गिव्स Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिसका E नॉट आपको दे रखा है -0.441 वोल्ट। Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव कैथोड पे, E नॉट जिसका दे रखा है 0.771 वोल्ट। अगर आपको ये दो रिएक्शन पता लग गई, अब आप क्या करेंगे, Fe3 पॉजिटिव आ गया, Fe2 पॉजिटिव आ गया, Fe आ गया, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को ऐड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2 Fe3 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 Fe2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहाँ पे बचेगा Fe प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे Fe2 और 2 Fe2, 3 Fe2 पॉजिटिव। तो E नॉट को डायरेक्ट ऐड कैसे करेंगे, E नॉट सेल आपका हो जाएगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 1.21 वोल्ट। तो E नॉट सेल आपने कैलकुलेट कर लिया कैसे, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड करके। E नॉट कैथोड आपको पता लग गया, E नॉट एनोड आपको पता है, तो E नॉट सेल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैथोड की वैल्यू 0.771 वोल्ट और एनोड की वैल्यू 0.441 वोल्ट। जब आप माइनस माइनस इसको प्लस करके जब इनको एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 1.212 वोल्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैच कर गया ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन। ये हाइपोथेटिकल सेल आपको दे रखा है, ए से जा रहे ए पॉजिटिव और ब्रिज बी से पॉजिटिव से जा रहे बी। देखो सीधा पता लग रहा है कि ये एनोड है, ये ब्रिज है और ये कैथोड है, ठीक है। कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। EMF मेजर्ड इज प्लस 0.20 वोल्ट। द सेल रिएक्शन इज, सेल रिएक्शन तो हम सिंपल से लिखते हैं, हमें पता है एनोड क्या है, ए से ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और बी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, बी पॉजिटिव में बदल जाए, बी में बदल जाएगा। अगर हमें इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ए प्लस बी पॉजिटिव गिव्स ए पॉजिटिव प्लस बी। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या कुछ होगा,
ए प्लस बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव प्लस बी। तो आंसर क्या मैच कर गया? 11 का ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मैच कर गया? ऑप्शन सी। हमने रिएक्शन लिख ली, ए से ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स बी, दोनों रिएक्शन को ऐड कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी पॉजिटिव गिव्स ए पॉजिटिव प्लस बी, ए प्लस बी पॉजिटिव गिव्स ए पॉजिटिव प्लस बी। 11 का आंसर मैच कर गया सी। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो इनमें हम टाइम सेव करके एक अच्छे न्यूमेरिकल पे अपना टाइम स्पेंड करके उसका भी आंसर करेक्ट ला सकते हैं। मतलब यही तो होती है एग्जाम की स्ट्रेटेजी, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब ई नॉट किसका? गैल्वेनिक सेल का। इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विद एन इक्वल टू, भाई सारा डाटा तो वो दे रहा है। द क्वेश्चन इज गिविंग एवरी डेटा, राइट? एन इक्वल टू 2 is found to be 0.295 वोल्ट। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं 298 केल्विन, टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो, वुड बी फैराडे कांस्टेंट ले लो, आर की वैल्यू भी ले लो, सारी वैल्यूज लेके आंसर निकाल दो। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ होगा, कह रहा है ई नॉट सेल, आपको पता है फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 0.0591, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है तो डायरेक्ट लगाया log के ई क्यू, बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो आंसर ले लो। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n log 10 k eq. K is the equilibrium constant. Number of electron transferred during that particular reaction was given, n is equal to 2. E नॉट की वैल्यू गिवन है 0.295 वोल्ट। 0.295 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये 2 से जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, मतलब log k क्या आ जाएगा? 1, मतलब k क्या आ जाएगा? 10 की पावर 1, मतलब k क्या आ जाएगा आपका? सॉरी फॉर दैट, ये 0.0295 होता तो ऐसा होता, बट यहाँ पर एक 10 रह जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड होकर 2 कैंसिल कर देगा। और मैं दोबारा कर देता हूँ, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.591 और ये है 0.0591। ऐसा एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने बचेगा 10, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 की पावर 10, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर 10। बताइए इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ होगा क्या? आंसर मैच कर रहा है 1 × 10 की पावर 10, मतलब सीधा ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन इज 12 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है? ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। आर यू रेडी एवरीवन फॉर क्वेश्चन नंबर 13? बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन द बेसिस द इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन 4/3 Al प्लस O2 गिव्स 2/3 Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम इतना कंबाइन हो रहा है O2 के साथ और आपको दे रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। डेल्टा जी आपको दे दिया -827 किलो जूल पर मोल, कह रहा है किलो जूल पर मोल ऑफ O2। द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3, द मिनिमम EMF रिक्वायर्ड, ठीक है। मिनिमम EMF रिक्वायर्ड को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? फैराडे की हेल्प से। हमें पता है Al2O3 में Al के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको 2x मान लिया, C6 हो गया, ओवरऑल 0, तो +3, मतलब +3 को Al में बदलने के लिए 3 फैराडे चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NFE0, डेल्टा जी हो जाएगा -NFE। Al से Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन होता है भाई। Al को अगर Al3 पॉजिटिव में चेंज करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ Al, 1 मोल ऑफ Al के लिए n की वैल्यू है 3, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने लूज हो रहे हैं? 3। तो हमारे पास कितना Al है? 4/3 मोल ऑफ Al। हमारे पास कितना Al है? 4/3 मोल ऑफ Al। आप देख सकते हैं 4/3 मोल ऑफ Al, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 4/3 मोल ऑफ Al के लिए अगर 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 3, लूज हो रहे हैं, तो 4/3 मोल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज होंगे? 3/4/3, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। कितने? 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेल्टा जी इज इक्वल टू NEF, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे 4, F की वैल्यू पता है, E कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी आपको गिवन है कितना? -827 × 1000 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए -827 किलो जूल पर मोल गिवन है, ठीक है, जिसको हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, माइनस जो यहाँ पर था उससे कैंसिल हो गया, तो 827 × 1000, 4 इसकी वैल्यू आई है। E आपको कैलकुलेट करना है, 96500 इज द फैराडेज कांस्टेंट।
वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ जाता है 827 इंटू 1000 अपॉन 4 इंटू 96500, जो कि आ जाएगी 2.14 वोल्ट। तो अगर आप इस कैलकुलेशंस को इतनी सिंपल तरीके से कर लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल इजीली तरीके से मैच कर जाएगा, और जो कि होगा 2.14। मतलब करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? एकदम इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा विच रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, सो लेट्स प्रोवाइड द सॉल्यूशंस, सॉरी ऑप्शंस। दिस इज इजी क्वेश्चन, बट आपको दिमाग लगाना है इसमें। टेल मी which reaction is not feasible? Which reaction is not feasible? Tell me the answer. एकदम से इजी क्वेश्चन है। कह रहा 2Ki प्लस Br2 gives 2Kbr प्लस I2। ठीक है, यहाँ पे Ki किस में? -1 में, यहाँ 0 में, Br2 0 में, यहाँ पे किस में? -1 में। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना है। कह रहा 2Kbr प्लस I2 gives 2Ki प्लस Br2। ठीक है, 2Kbr प्लस Cl2 प्लस 2KCl प्लस Br2, 2H2O प्लस 2F2 प्लस 4 gives 4HF प्लस O2। देखो इनमें एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, एक I नेगेटिव -1 से 0 जा रहा है, मतलब इसका हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। और Br2 0 से -1 जा रहा है, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। दूसरे केस में 2Kbr से -1 से कहा जा रहा है 0, तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। और ये 0 से जा रहा है -1, तो इसका हो गया रिडक्शन। तो अब इस बात पे डिपेंड करना है कि क्या उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उस बेस पर हमें क्या करना है? डिसाइड करना है कि कौन सी रिएक्शन होगी। बट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो अपना करेगा रिडक्शन। ठीक है, वो अपना क्या करेगा? रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो अपना करेगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या दे रखा है? KBr जो कि किस में? -1 में, Cl2 किस में? 0 में, Cl किस में गया? -1 में। 0 से -1 मतलब Cl का क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई के लिए बताइए Cl का क्या हो रहा है? 0 से -1 जा रहा है। अगर ये जा रहा है 0 से -1 तो Cl का हो रहा है आपका, बताइए क्या हो रहा है? रिडक्शन। और -1 से 0 Br जा रहा है तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और H2O में आप देखेंगे यहाँ पे -2 है, यहाँ पे फ्लोरीन 0 में है, यहाँ पे फ्लोरीन -1 में आ गया और ऑक्सीजन 0 में आ गया। -2 से 0 ऑक्सीडेशन और 0 से -1 रिडक्शन, 0 से -1 रिडक्शन। ठीक है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इट्स वेरी इजी। टेल मी विच रिएक्शन इज नॉट विजिबल। मैं आपको एक हिंट प्रोवाइड करता हूं। जो आयोडीन है, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किससे? ब्रोमीन से। तो अगर आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या वो रिडक्शन करेगा या ऑक्सीडेशन करेगा? तो मैं आपको आंसर मैच कराता हूं। आंसर क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज Br negative ion is not oxidized to Br2 with I2 due to higher electrode potential of I2 than bromine। मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा, ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ I2 देन ब्रोमीन। क्लियर? मतलब इस बात को आप इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो आयोडीन को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। किसका ऑक्सीडाइज होना चाहिए? आयोडीन को। बट यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो गया? Br। कैसे ऑक्सीडाइज हो गया? वो चला गया -1 से 0 और ये 0 से -1 जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? 0 से -1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो KBr 2Kbr प्लस I2 gives 2Ki plus Br2। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट feasible because values are not according to the reaction। मतलब Br नेगेटिव इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, Br नेगेटिव को ऑक्सीडाइज नहीं होना है टू Br2 विद I2, राइट? I2 के साथ मिलके, ड्यू टू बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ I2 इज मोर देन द, बिकॉज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ I2 इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन। तो इसका मतलब I2 का ऑक्सीडेशन होगा
मतलब हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये ऑक्सीडेशन में जाएगा और Br को रिडक्शन में भेजेगा, बट Br का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और खुद का इसने कर लिया रिडक्शन, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is again a very easy and simple question. Are you ready for this question, everyone? So solve this question number 15. Question number 15 is saying that copper aqueous is unstable, okay, in solution and undergoes simultaneous oxidation and reduction. This is not copper aqueous only. This is Cu plus, okay. This is unstable in solution, ठीक है, and undergoes simultaneous oxidation. ये हो गया +1 से +2 और हो गया +1 से 0। ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज रिडक्शन। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज 2Cu positive aqueous gives Cu2 positive aqueous plus Cu solid. Choose correct E0 for above reaction if E0 Cu2 positive to Cu is equal to 0.34, E0 Cu2 positive to Cu positive is 0.154। कह रहा है करेक्ट E0 आपको चूज करना है फॉर दिस अबव रिएक्शन। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या होना चाहिए। दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन आपको मैंने कल कॉम्प्रपोर्शनेशन और सिनप्रपोर्शनेशन भी बताए थे। आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का E0 करेक्टली चूज करना है। अगर आपको E0 वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका 2 पॉजिटिव से, जब वो कहाँ जा रहा है डायरेक्ट 0 में, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव से +1 में जा रहा है, 2 पॉजिटिव से +1 में, और यहाँ 2 पॉजिटिव से 0 में, तो कौन सा आपको जो है वो करेक्टली मैच करेगा। तो आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। 2Cu पॉजिटिव से क्या जा रहा है Cu2 प्लस और Cu, मतलब Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया Cu। इसका E1 नॉट आपको दे रखा है 0.34 वोल्ट। Cu2 पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, देन इट विल convert itself into Cu positive and the value of E2 naught is 0.15 volt. This is equation 1, this is equation 2. The question is saying that Cu positive plus electron gives Cu, so E3 naught calculate करिए। Without delta G naught we cannot calculate that, right? So how can you calculate? Delta G1 naught is equal to minus NF E1 naught, वो आप calculate करेंगे -2 into 0.3134 Faraday. Delta G2 naught is equal to -1 into 0.15 Faraday. डेल्टा G3 नॉट क्या हो जाएगा -1 इंटू E3 नॉट फैराडे। सारी इक्वेशंस को क्या करेंगे, हमें पता है कि डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट प्लस डेल्टा G3 नॉट। जब डेल्टा G1 नॉट की वैल्यू रखें, डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू, देखो डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट प्लस डेल्टा G3 नॉट। मैंने क्यों बोला है, मतलब मैंने कहा है कि डेल्टा G1 नॉट ये है डेल्टा G1 नॉट, इसका है डेल्टा G2 नॉट, इसका है डेल्टा G3 नॉट। तो ये मैंने किस लिए बोला है कि डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu2 प्लस गिव्स कॉपर, ये इक्वल है किसके, इलेक्ट्रॉन प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और Cu2 पॉजिटिव से Cu बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो एक्चुअली सेकंड प्लस थर्ड का सम है, राइट। सेकंड प्लस थर्ड का क्या है, सम। तो सम करने पर हमें क्या मिलता है, जब हमने वैल्यूज रखी यहाँ पे डेल्टा G1 की, वो कितनी आपकी 2 इंटू 0.34 फैराडे, डेल्टा G2 की है -1 इंटू -1 इंटू 0.15 फैराडे, प्लस इसकी है आपकी -1 इंटू E3 नॉट इंटू फैराडे। तो फैराडे और माइनस 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 और फैराडे कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 0.68, जिसको माइनस कर देंगे हम, जिसमें माइनस कर देंगे 0.15 इक्वल टू आ जाएगा E3 नॉट। मतलब कितना आ गया E3 नॉट, E3 नॉट आपका आ जाएगा 0.53 वोल्ट। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए, 0.53। एक सेकेंड, तो आप यहाँ पर देखेंगे जब हमने वैल्यू पुट करी तो 0.53 वोल्ट आ गया, वो आया आपका E3 नॉट। बट हमें क्या निकालना है, हमें E3 नॉट निकालना, हमें पता है E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट कैथोड जो कि Cu पॉजिटिव से Cu, ठीक है, ये कैथोड हो गया, और एनोड क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब Cu2 पॉजिटिव से Cu इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज आपको देखते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। उसने क्या कहा है कि E नॉट फॉर द अबव रिएक्शन, इफ E नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu
एंड ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव आपको गिवन है, तो आपको मैंने अब ई नॉट 3 कैलकुलेट करके बताया, जिसकी वैल्यू क्या आई है 0.68 नहीं 0.53 वोल्ट। क्या वैल्यू आई है 0.53 वोल्ट। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो आपने क्या किया, ई नॉट कैथोड की वैल्यू आ गई है आपके पास 0.53 वोल्ट, ई नॉट एनोड की आपने पुट करी 0.15 वोल्ट, तो करेक्ट आंसर इज 0.38 वोल्ट। क्या आंसर मैच कर रहा है 0.38 वोल्ट। तो देखा आपने क्वेश्चन को कहां से कहां तक घुमाया है उसने, बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसको उसने कहां तक घुमाया है। क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द करेक्ट ई नॉट फॉर द अबव रिएक्शन, अगर आपका ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu दे रखा है ये, और ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव दे रखा है 0.15 वोल्ट, तो आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव वाली या Cu2 पॉजिटिव से Cu वाली, जो भी आपको यूज करनी है यूज करिए और आंसर कैलकुलेट करके बताइए। और हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया है जो आया है 0.38 वोल्ट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। आर यू रेडी? यस। सो यू कैन सी दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। गलत बात, जो केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी जो हो रही है हमारी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए रिडॉक्स रिएक्शन, उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप इज एज PtH2 1 एटमोस्फेयर, HCl जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, ब्रिज CH3COOH 0.1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, H2 1 एटमोस्फेयर Pt। द EMF ऑफ दिस सेल विल नॉट बी जीरो बिकॉज इस सेल की EMF जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर आपको HCl दे रखा है जो कि एक एसिड है, यहां पर आपको CH3COOH गिवन है, दिस इज ऑल्सो एन एसिड, both are acids but both are different acid. This one is weak acid, this one is strong acid. 0.1 molar is the concentration, 0.1 molar is the concentration, but because of weak and strong, the number of ions given will be different. It means the concentration of H positive will be different. So if the concentrations are not same, so EMF of this cell will not be zero. So pH of 0.1 molar HCl and 0.1 molar CH3COOH is not same. ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। फॉर ए कॉन्सेंट्रेशन सेल, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन सेल था हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है E is equal to 0.0591/n log C1/C2। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है C1 equal to C2 तो ये 1 आ जाता है और ये 0 हो जाता है और E 0 हो जाता है। इफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस आर आइडेंटिकल देन ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि सेल का जो वोल्टेज है, जो सेल का EMF है वो होना चाहिए 0। बट अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशंस आइडेंटिकल नहीं है देन हाउ कैन यू से दैट कि आपका EMF 0 होगा? सेल का नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिकल नहीं है। बिकॉज in this given particular reaction as the pH of 0.1 molar HCl जो कि एक strong acid है and pH of 0.1 molar CH3COOH जो कि weak acid है, वो सेम हो ही नहीं सकती। जब हम कैलकुलेशन करेंगे pH जो डिपेंड करता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस विल बी डिफरेंट बिकॉज one is a strong acid that will be dissociate completely to provide H positive ions and another is a weak acid that is CH3COOH. It means acetic acid that will dissociate not completely, that means that will dissociate partially to provide H positive ions. It means डेफिनेटली क्या होगा, अगर CH3COOH आपका वीक एसिड है तो H पॉजिटिव कंप्लीटली नहीं देगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कम हो जाएगी, pH वैल्यू वेरी करेगी एज कंपेयर टू pH ऑफ 0.1 मोलर HCl। इस बात को भी छोड़े, थोड़ी छोटी ग्रेड्स की तरफ मूव करें तो इस स्केल पे जो 0 से 14 होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वहां पे 7 न्यूट्रल के लिए कहता है, तो HCl और CH3COOH दोनों का pH यहाँ पे सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर pH सेम नहीं है तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है और इसका मतलब सेल वोल्टेज 0 नहीं होगी। cell voltage, therefore the cell voltage will not be 0। तो correct answer of this particular question is option D। Temperature is constant, ये बात नहीं है। EMF depends on molarities, acid used in two compartments are different। Option D is the correct reason for this particular question। That is question number 16। Are you ready for question number 17? Yes, this is your question number 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ बटन सेल इज हियर। बटन सेल मैंने आपको बताया था जिसको हम वॉच में यूज करते हैं, छोटा वाला जो सेल होता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं बटन सेल। इन वॉचेस फंक्शंस एज ZnS plus Ag2O plus H2O gives 2Ag
solid plus Zn2 positive plus 2OH negative. The half cell potentials are, half cell potentials दे रखे हैं Zn2 positive plus 2 electron gives Zn. E नॉट वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट. क्या दे रखी है? -0.76 वोल्ट. ठीक है. और उसके बाद Ag2O प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस 2OH नेगेटिव. इसका ई नॉट दे रखा 0.34 वोल्ट. ठीक है. दोनों केसेस आपको एज ए रिडक्शन की टर्म में लिख रखे हैं. Zn2 पॉजिटिव में भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ई नॉट दे रखा है, और इसमें भी रिडक्शन हो रहा है और ई नॉट दे रखा है. कह रहा है सेल पोटेंशियल विल बी, क्या कह रहा है? द सेल पोटेंशियल विल बी. वेरी इजी. देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. E naught cell is nothing, that is E naught of oxidation potential plus E naught of reduction potential. So E naught of oxidation potential इसको आप दूसरी टर्म में कैसे लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? E naught oxidation potential plus E naught reduction potential. Both values are given to you, so you can put here. So E naught oxidation potential is 0.76 volt. आप यहां पर देख सकते हैं 0.76 volt. अब आप कहेंगे this is in terms of reduction, तो ये माइनस में गिवन है. so आपको सिर्फ क्या करना है? सिंपली जस्ट चेंज द साइन, बिकॉज मैंने आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू द माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. तो जब भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को इंटर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? चेंज द साइन. माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0.76 वोल्ट प्लस का. ये आपका अब किस टर्म में हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में. इट मींस ई नॉट, बट ई नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव, ये किस टर्म में लिखा है मैंने? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में. क्लियर? 0 से +2 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो ऑक्सीडेशन. सो इस तरीके से मैंने वैल्यू चेंज करी. और ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि 0.76 वोल्ट है, और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 0.34 वोल्ट. तो आपका इनका सम करने पर जो वैल्यू आती है दैट इज 1.10 वोल्ट. इफ द ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, ई नॉट सेल क्या आ गया यहाँ पे? पॉजिटिव. इट मींस बताइए रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, फीजिबल, बिकॉज डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव. डेल्टा जी नॉट विल बिकम नेगेटिव. Let's move to the question number 18. Question number 18 is saying that standard free energies of formation in kilojoule per mole at 298 Kelvin are minus 237.2, minus 394.4, and minus 8.2 for H2O liquid, CO2 gas, and pentane gas respectively. The value of E naught cell for the pentane oxygen fuel cell. Pentane is an alkane. Alkane general formula is CnH2n plus 2. Pent means n is equal to 5. Put the value here. So आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? C5H12. This is pentane. Pentane oxygen fuel cell है, तो आपको एनोड कैथोड के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखनी है, and then you can solve the particular question. So writing the equation for pentane oxygen fuel cell at respective electrodes and like you can say overall, then write overall reaction. Okay. So हमें एनोड पर क्या लिखना है? Pentane plus 10H2O gives 5 CO2. मैंने आपको बताई रखा है C5H12 plus 10H2O gives 5 CO2 plus 32H positive plus 32 इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन आप देख सकते हैं कितने आएंगे? 32. कैसे? जब हम ऑक्सीजन को लिखेंगे कैथोड पर. 8O2 plus 32H positive plus 32 इलेक्ट्रॉन हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन, मतलब कैथोड, gives 16H2O. ओवरऑल रिएक्शन विल बी C5H12 plus 8O2 gives 5 CO2 plus 6H2O. कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट हम इजीली कर सकते हैं. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 5 इंटू -394.4 प्लस 6 इंटू -237.2 और माइनस कर देंगे क्या उसमें से? माइनस के 8.2. जब आप इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे यू विल गेट द आंसर -3387000 जूल्स. और अगर किलो जूल में बात करूं तो माइनस के 3387 किलो जूल. सो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपकी एक वैल्यू आई है, ठीक है, जो आई है आपकी डेल्टा जी नॉट इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. हमें ये पता है कि इस रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज 32. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने आ गए? 32. सो यूजिंग दिस रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है मैंने आपको बता रखी है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल. एंड सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज आप देखेंगे डेल्टा जी नॉट हमने कैलकुलेट किया इन जूल्स -3387000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड आए हैं 32. एफ की वैल्यू आपको पता ही है, फैराडेज कांस्टेंट. ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स हम क्या यूज करते हैं? 96500. ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है.
आप सारी वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1.0968 वोल्ट। क्या आंसर आपका मैच कर रहा है? 1.0968 वोल्ट। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is very simple. Question is saying that the efficiency of a fuel cell is given by. Efficiency आपको सिंपली बतानी है, तो इसका सीधा सा रिलेशनशिप है। Efficiency को डिनोट करते हैं ईटा से, वो होगी आपकी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा एच इज द रिक्वायर्ड एनर्जी जिसको हम कहेंगे इनपुट, एंड डेल्टा जी इज द यूजफुल एनर्जी जिसको हम कहेंगे आउटपुट, जो कि ऑब्टेन्ड एनर्जी होगी। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डायरेक्ट आपको रिलेशनशिप लर्न करनी है। Let's move to the last question, question number 20. In the silver plating of copper, आपको दे रखा है एक coordination compound KAgCN whole twice is used instead of AgNO3. What is the reason behind this? Silver plating of copper के टाइम पे ऑप्शन दे रखे हैं, thin layer of Ag is formed on Cu, more voltage is required, Ag positive ions are completely removed from solution, or less availability of Ag positive ions as Cu कैन नॉट डिस्प्लेस Ag फ्रॉम AgCN होल ट्वाइस सिल्वर साइनाइड। जो आयन आपका बनेगा यहां से AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव, आप इसे लिखेंगे AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बिकॉज इन द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर, जो आपका पोटाशियम का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है KAgCN होल ट्वाइस is used instead of AgNO3 because copper being more electropositive and readily precipitate silver from दियर सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्या है AgNO3। अगर आप इसकी रिएक्शन लिख रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं Cu प्लस 2 AgNO3 आपको क्या देगा? कॉपर नाइट्रेट, मतलब CuNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। वेयर एज इन पोटाशियम जो ये आपका कॉम्प्लेक्स है AgCN होल ट्वाइस KAgCN होल ट्वाइस सॉल्यूशन, एक कॉम्प्लेक्स अनायन जो कि बन रहा है AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव इज फॉर्म्ड एंड हेंस Ag पॉजिटिव आर लेस अवेलेबल, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो आयनाइज नहीं होता, नॉन आयनाइजेबल होता है। एंड देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस Ag फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स आयन, और इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप यू गॉट दिस आंसर। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। तो इस तरीके से हम नीट PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल मैंने कराए हैं, और सारे हमने PYQs इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट PYQs थे वो डिस्कस की। ठीक है, so now we will meet in the next class. So thank you so much everyone. This is all about this today's class.